السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں مجھے جوائن کریں گے مزمل سوروردی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، سب سے پہلے پروگرام کا آغاز جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے، جو کہ اب حکومت ہٹاؤ تحریک میں تبدیل ہونے کا عندیہ دے دیا ہے حافظ نعیم الرحمان نے، اور جماعت اسلامی کے جو دو مذاکرات کا دور تھا وہ کسی کروٹ نہیں بیٹھا، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ حکومت سیریس نہیں ہے اکارڈنگ ٹو جماعت اسلامی۔ لیکن کچھ دیر پہلے ہمیں جو پریس کانفرنس ہمارے سامنے آئی ہے وفاقی وزیر عطا کی، جس میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ حکومت آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے فی الحال تیار ہے۔ ایم کیو ایم بھی اسی حوالے سے ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ مزمل صاحب، سب سے پہلے بات حافظ نعیم الرحمان کے حوالے سے، اس ٹائم کافی ایگریسو ہو چکے ہیں اور جماعت اسلامی کا دھرنا ہمارے سامنے ہے۔ اگر یہ حکومت ہٹاؤ تحریک میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں، 7واں دن ہے اور 7 دن بیٹھنے کے بعد یقیناً آپ ایک لمبے عرصے تک تو نہیں بیٹھ سکتے لیاقت باغ میں، اور یہ بات حافظ نعیم الرحمان صاحب کو پتہ ہے کہ لوگوں کو ایک بہت لمبے عرصے تک آپ وہاں پر نہیں بٹھا سکتے، تو رزلٹ تو انہیں چاہیے۔ اور اگر حکومت لمبا کرتی ہے مذاکرات کو اور وہ مذاکرات جو ہیں اور 10-15 دن 20 دن چلتے ہیں، تو حافظ نعیم صاحب کو اندازہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے ان کی کراؤڈ جو ہے وہ نکل جائے گا، اور اگر خالی کنٹینر اور وہ اکیلے رہ گئے تو پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ تو اس دھرنے کے ساتھ نہیں ہے کہ لوگ نہیں بھی ہوں گے تو اس کی کوریج جاری رہے گی یا اس کا پریشر برقرار رہے گا۔ اس کا پریشر تو اسی صورت ہے کہ اگر وہاں پر لوگ موجود ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کراچی گورنر ہاؤس کے آگے دھرنا اور پورے پاکستان میں دھرنوں کی بھی بات کی کہ اگر لوگوں کو پنڈی میں ہولڈ کرنا مشکل ہو جائے تو پھر ہم لوگوں کو مختلف شہروں میں دھرنا دے کر اپنا پریشر برقرار رکھ سکیں، کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک بہت لمبے عرصے تک ایک سائزیبل کراؤڈ کو ایک جگہ پہ بٹھا کے برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کاؤنٹ ڈاؤن اس دھرنے کا شروع ہوگا، اور وہ کاؤنٹ ڈاؤن مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کے پاس اگر ان کا کوئی شارٹ ہے تو ضرور سنوائیں۔ بالکل، اور مزمل صاحب میں اسی سوال سے آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گی۔ سب سے پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب کیا رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے، 2 دور مذاکرات کے ہو گئے ہیں۔ میں اس موقع پر میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کا اگلا دور اب میڈیا کے سامنے کیا جائے۔ مزمل صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ اب میڈیا کے سامنے تیسرا دور ہوگا، اور آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم کراؤڈ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں 7 روز جیسا کہ ہو گئے ہیں، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کراؤڈ یہ اس طرح سے نہ رہے جس طرح آ جائے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی نے بھی، عمران خان نے بھی کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ اسی دھرنے میں آپ جائیں اور بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہوں، اس دھرنے میں شامل ہوں، تاکہ آپ اپنے مطالبات بھی سامنے رکھ سکیں۔ دیکھیں، ابھی تو پی ٹی آئی کا کوئی کراؤڈ ہمیں اس دھرنے میں نظر نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی نے ابھی تو دیکھیں، پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ملنے بھی لیاقت باغ میں نہیں گیا۔ دیکھیں نا، جیسچر آف گڈ ول ہوتا ہے، آپ اپوزیشن میں ہیں، وہ بھی اپوزیشن میں ہے، آپ ان کے سٹانس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بجلی سستی ہونی چاہیے، حکومت مہنگی بجلی دے رہی ہے، تو آپ اور کچھ نہیں تو آپ ان کو ملنے ملاقات کرنے تو جاتے ہیں۔ سیاسی طور پہ اس کو سیاسی رواداری کہتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی کے وفد کو ملنے لیاقت باغ دھرنے والی جگہ پہ چلا جاتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف اس دھرنے سے خود کو بہت ڈسٹنس پہ رکھ رہی ہے، اور بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا دھرنا ان کے خلاف ہے، حکومت کے خلاف نہیں ہے، جتنا ڈسٹنس اور جتنا اینگر اس حوالے سے نظر آیا ہے۔ اور میں کافی حیران ہوں اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی نے بالکل جماعت اسلامی کا نہ ساتھ دیا ہے، نہ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ وہ تو دعا کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا کوئی دھرنا ناکام ہی ہو جائے، کیونکہ ہمیں کوئی سپورٹ ابھی تک پی ٹی آئی کی اس دھرنے میں نظر نہیں آئی ہے۔ ایک بھی جھنڈا نظر نہیں آیا ہے، لوگ نہیں نظر آئے ہیں، ان کے لیڈر نہیں آئے ہیں، ان کے ایم این اے سینیٹرز وہاں نہیں آئے ہیں۔ مطلب اگر پی ٹی آئی کے لیڈر وہاں جانا شروع کر دیں تو پی ٹی آئی کا کراؤڈ خود بخود وہاں آنا شروع کر دے گا۔ لیکن شاید پی ٹی آئی کو یہ خوف ہے کہ اگر انہوں نے اپنا کراؤڈ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دے دیا
तो हाफिज नईम रहमान साहब उस क्राउड को होल्ड कर लेंगे और वो क्राउड कहीं पीटीआई से जमात इस्लामी का क्राउड ना बन जाए। तो सियासी तौर पे ये शायद उनके लिए नुकसानदेह हो, इसलिए कॉज को सामने नहीं रख रहे, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे को रख के आपको ये समझना पड़ेगा कि आज धरने का 7वां दिन है और अभी तक तहरीक इंसाफ वहाँ पहुँची नहीं है। तो फिर ख़तरे की क्या बात है? आज भी जो है तहरीक इंसाफ अपना जो वो जिसको बहुत उनके लोगों ने मजाक उड़ाया जिस भूख हड़ताली कैंप का कि दोपहर के खाने के बाद भूख हड़ताल करनी है और रात के खाने से पहले तोड़ देनी है, वो तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये धरना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको एक बात कराची की समझ एग्जैक्टली मैं यही आपसे सवाल भी करना चाह रही हूँ। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि एमक्यूएम भी इस टाइम टफ टाइम देने के लिए इस टाइम मैदान में आ चुकी है हुकूमत, और वफाकी वजीर अता तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वो क्या रहे हैं सबसे पहले सुनवाते हैं, फिर उस पर तबसरा। इकॉनमी ऐसी हो गई है कि वो इस अरेंजमेंट से ये मुल्क अभी आगे नहीं चल रहा, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि कंपनीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट बंद हो रहा है। जब इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट बंद हो रहा है, तो आम आदमी की जो नौकरी है वो जा रही है, मजदूरों की मजदूरी जा रही है। तो ये जो आपने 12,900 अरब रुपए जो इस बजट में रखे हैं रेवेन्यू कमाने के लिए, वो कहां से कमाएंगे? वो इंडस्ट्रियल से कमाएंगे, आप वो तनख्वाहदार मुलाजमीन से कमाएंगे। तो जब इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी नॉन पेमेंट पे आईपीपीस के चक्कर में, जब जो है वो वहां का मजदूर जो बेरोजगार हो जाएगा, तो आपका तो पूरा बजट जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, आपके बजट में रेवेन्यू आना ही नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमी में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में आईपीपीस के जख्म को भरे हुए जहां से ब्लीडिंग हो रही है, इसके बगैर पाकिस्तान नई तरक्की। मुज़म्मिल साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब को गरीब आवाम का दर्द इसी मौके पर ही क्यों याद आ रहा है? देखिए, इसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें अता तारड़ और मुस्तफ़ा कमाल इकट्ठे थे, जिसमें अता तारड़ ने कहा है कि हुकूमत आईपीपीस के मुआहदे को रिव्यू करने के लिए तैयार है और ये है वो है। लेकिन आप जमात इस्लामी और एमक्यूएम की राइवलरी को भी समझें। कराची में हाफिज नईम रहमान साहब ने जमात इस्लामी को काफ़ी रिवाइव किया है और वो एमक्यूएम के लिए एक थ्रेट है। वहाँ इस वक्त पीटीआई का इतना वोट बैंक नहीं है जितना जमात इस्लामी का कराची में वोट बैंक है, और एमक्यूएम और जो जमात इस्लामी है इनकी बहुत पॉलिटिकल राइवलरी है, और ये पुरानी राइवलरी है। प्रोफेसर गफूर साहब के दौर से, जब बानी एमक्यूएम कराची में ही होते थे, जब एमक्यूएम का बूम था, तब भी जमात इस्लामी की राइवलरी रही है। तो अब अगर बिजली सस्ती का सारा क्रेडिट जमात इस्लामी को मिल जाता है तो कराची में एमक्यूएम अपनी पॉलिटिकल स्पेस लूज कर सकती है। इसीलिए हाफिज नईम रहमान साहब ने कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरने का ऐलान किया, क्योंकि एमक्यूएम का गवर्नर है वहाँ पे। उन्होंने वज़ीर आला हाउस के सामने नहीं किया, कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने कल को एमक्यूएम के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ना है, और एमक्यूएम को ये पता है कि जमात इस्लामी उनके लिए थ्रेट है। लिहाजा एमक्यूएम भी इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है कि बिजली सस्ती करने में क्रेडिट उनका भी है, ताकि हाफिज नईम रहमान अकेले ये क्रेडिट ना ले जाएं। इसलिए आपने जमात इस्लामी का एमक्यूएम का पिछले दिनों जलसा भी देखा है, आज वो प्राइम मिनिस्टर को भी मिले हैं, आज गवर्नमेंट ने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि आगे अगर आईपीपीस का मुआहदे रिव्यू होते हैं तो एमक्यूएम को भी उसका क्रेडिट मिल सके। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है एमक्यूएम, बड़ा एक वैलिड नुक्ता है जो आपने सामने रखा है। लेकिन सूरत हाल गौहर एजाज साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कुछ देर पहले ही थी, और वो भी इस टाइम क्लियर कर रहे हैं कि सिर्फ हम 40 एक ख़ानदानों के साथ नहीं हैं, हम 24 करोड़ आवाम के साथ हैं। और गौहर एजाज साहब भी ये क्लियर कर रहे हैं कि इसमें अब हमें आवाम को हर सूरत रिलीफ देना पड़ेगा, इसके अलावा तो बात हो ही नहीं सकती। यकीनन मैं समझता हूँ आज गवर्नमेंट ने इशारा दे दिया है कि आईपीपीस के मुआहदों का रिव्यू शुरू हो गया है, और मेरी अपनी इत्तला भी यही है कि इसमें कैपेसिटी पेमेंट का पे रिव्यू है, और इसके अलावा इसमें जो है वो जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस थी उसके ऊपर रिव्यू मौजूद है कि लोगों ने कॉस्ट ऑफ बिज़नेस प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा बताया हुआ है, और कैपेसिटी का भी फोरेंसिक रिव्यू करने की बात है। जो लोग डील कर लें, टेबल पे बैठ के हो जाए, या कोई इंटरनेशनल ऑडिटर डाले जाएं, लेकिन गवर्नमेंट इसको रिव्यू करना चाहती है। लेकिन मैं एक और सूरत हाल भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, हुकूमत इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट्स पर 1893 बिलियन रुपीज़ देती है। हाँ जी। इसमें से 1495 बिलियन जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड आईपीपीस को जाते हैं, जो 79% है। मसलन 388 बिलियन तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को मिलते हैं, जिससे अब चश्मा
5 लग रहा है, उससे लोन पेमेंट हो रहे हैं, न्यूक्लियर बिजली हम बनाते हैं। फिर जो 2 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के LNG प्लांट्स हैं जो 4800 के हैं, 4 प्लांट्स, उनको 150 बिलियन दी जाती है, तो वो भी चारों प्लांट्स गवर्नमेंट के हैं जिनको कैपेसिटी पेमेंट दी जाती है। हाइड्रल में नीलम झेलम और बाकी की जो कैपेसिटी पेमेंट है, नीलम झेलम तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा डिबैकल है, और सबसे हाइड्रल की इतनी महंगी बिजली हमें वो पड़ गई है, उसको 299 बिलियन दिए जाते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट के ही पैसे हैं, गवर्नमेंट को ही देती है। 4500 जो है वो हम थारकोल को देते हैं, तो उसमें सिंध गवर्नमेंट है और कुछ प्राइवेट हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी पेमेंट थारकोल की हम देते हैं। और को 300 और कुछ हम इम्पोर्टेड कॉल को 4500 देते हैं और थारकोल को 307 बिलियन देते हैं। तो 1495 बिलियन की जो कैपेसिटी पेमेंट है, वो ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अपनी ही IPPs को, गवर्नमेंट ओन्ड IPPs को भी दे रही है, जो 79% ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट है। लिहाजा जो हम प्राइवेट सेक्टर को बहुत बोल रहे हैं कि वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया, वो 21% है टोटल पेमेंट का। इसलिए गवर्नमेंट को जब ये रिव्यू करना है तो अपने प्रोजेक्ट्स को भी रिव्यू करना है। जो गवर्नमेंट खुद कैपेसिटी पेमेंट्स ले रही है, एक जेब से दूसरी जेब में डाल के, इधर से पैसे देती है, उधर से अपने जेब में डाल लेती है, उसके नतीजे में बिजली महंगी है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अपनी कैपेसिटी पेमेंट्स के मुद्दे भी रिव्यू करने हैं, जो हुकूमत ने खुद अपने साथ किए हुए एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, जिनसे 0 यूनिट पर 2000 करोड़ रुपए वसूल किए गए। कितनी भरी एग्जांपल्स हैं। अब बिल्कुल, तो उसमें गवर्नमेंट के प्लांट भी हैं और प्राइवेट सेक्टर के प्लांट भी हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये समझें कि गवर्नमेंट ये कैपेसिटी पेमेंट्स की बेनिफिशियरी गवर्नमेंट भी है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स की बेनिफिशियरी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, इसमें गवर्नमेंट खुद भी इसकी बेनिफिशियरी है, और गवर्नमेंट ओन्ड IPPs जो हैं वो भी कैपेसिटी पेमेंट्स ले रहे हैं, और गवर्नमेंट खुद को कैपेसिटी पेमेंट्स देकर भी बिजली महंगी कर रही है। अगर गवर्नमेंट अपनी IPPs को कैपेसिटी पेमेंट देना बंद कर दे तो ये 79% ऑफ द पेमेंट है। अच्छा। और बिजली सस्ती हो सकती है। लिहाजा बहुत सारे रास्ते हैं, इसीलिए आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अतात आरड ने कहा है कि हम रिव्यू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो जमात इस्लामी ने कहा है ना कि अब मुज़ाकरात जो हैं वो मीडिया के सामने होंगे, तो ये मुज़ाकरात मीडिया के सामने नहीं हो सकते। ये ऐसे ही है जैसे इमरान खान साहब रोज़ाना एस्टैब्लिशमेंट को मीडिया के जरिए मुज़ाकरात की दावत देते हैं ना, तो वो भी मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। गवर्नमेंट मीडिया के सामने बैठ के क्या कहेगी कि हम बिजली सस्ती नहीं कर सकते। सर ऐसे ना कहे ना, बैकडोर राब्ते तो हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में हमें सूरत हाल नजर आ रही है कि जमात इस्लामी ये कह रही है कि सीरियस है ही नहीं गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि किसी न किसी सूरत अवाम के लिए के मसलों का हल निकाला जा सके। इतनी बिजली महंगी हो चुकी है, महंगाई हो चुकी है, मैशत की हालत हो चुकी है, गवर्नमेंट के पास सूरत हाल नहीं है इसको ठीक करने की। मैं जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करता हूँ, हाँ। क्योंकि मैं सस्ती बिजली चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ गौहर एजाज साहब जो बात कर रहे हैं, जो मिफ्ता इस्माइल ने बात की है, या जो जमात इस्लामी का धरना है, ये सब हुकूमत को बिजली सस्ती करने का जवाब दे रहा है। ये IPPs पर दबाव बढ़ा रहा है और हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहा है कि मुल्क में बिजली सस्ती की जा सके। जो बात MQM कर रही है वो भी तो मेरी बात कर रही है ना कि बिजली सस्ती की जाए। तो जो बात जमात इस्लामी कर रही है, जो MQM कर रही है, जो गौहर एजाज कर रही है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत बात कर रहे हैं और बिजली सस्ती नहीं होनी चाहिए। बिजली सस्ती होने का कोई ना कोई रास्ता है, तो हुकूमत को निकालना चाहिए। और मैं सस्ती बिजली के हक में हूँ, महंगी बिजली के हक में तो हो नहीं सकता। अब मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ये जो IPPs में हमने बहुत सा ये शुरू कर दिया कि 40 खानदान, 20 खानदान, ये खानदान खा गए हैं। मैं मान रहा हूं कि पाकिस्तान के बड़े कारोबारी लोगों के IPPs मौजूद हैं, 8, 10, 12 अपनी जगह मौजूद हैं, और वो कैपेसिटी पेमेंट्स ले रहे हैं। वो उनको नहीं लेनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। ये वक्त मुनाफा कमाने का नहीं है, ये मुल्क को बचाने का वक्त है। अगर हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के IPPs हैं वो इस वक्त अपने मुनाफे में कमी करें और हुकूमत को सस्ती बिजली के लिए रास्ता दें, तो वो मुल्क के लिए रास्ता दे रहे हैं, किसी हुकूमत को तो नहीं दे रहे हैं। बेशक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी इनएक्टिव हैं, वो भी कह रहे हैं कि शहरी बिजली के बेतहाशा बिलों से इस टाइम 2-4 हैं, इसीलिए एक आला सतही तिजारती वफ्द मुलाकात भी कर रहा है सदर आसिफ अली जरदारी से, ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। जरदारी साहब को भी बहुत देर से रहते ख्याल नहीं आ गया। मैं आपको एक बात बताऊं,
कोई सियासी जमात इससे बाहर नहीं रह सकती। पीपल्स पार्टी भी कहेगी सस्ती बिजली होनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून भी कहेगी सस्ती बिजली होनी चाहिए, कौन कहेगा, लेकिन इसका रास्ता तलाश करने की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब जिन बड़े नामों, मैं यहाँ वो नाम नहीं लेना चाहता, जो बड़े नाम लिए जाते हैं कि इनके आईपीपीज हैं पाकिस्तान में, बेशक बड़े बड़े कारोबारी लोग जिनके आईपीपीज हैं और वो कैपेसिटी पेमेंट्स ले रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अब उनको इकट्ठे मिलकर कौम के सामने आके कहना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए अब ये कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं लेंगे। बेशक, क्योंकि हमने ठीक है मुनाफा कमा लिया है, अगर हमें नुकसान भी होता है तो हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। उनको करेज दिखानी चाहिए। मैं ये मतलब नाम नहीं लेना चाहता अभी यहाँ, जिन भी बड़े नामों के बड़े कारोबारी लोगों के आईपीपीज पाकिस्तान में हैं, उनकी लिस्टें आ गई हैं, उनके नाम चैनल्स पर चल गए हैं, कौम उनके नाम जान गई है। उनको चाहिए कि वो अब पाकिस्तान के लिए बाहर आए, सामने आए और आकर खुद कहें कि हम अब कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं लेना चाहते, हमें अगर नुकसान भी होगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, हमने पाकिस्तान से बहुत मुनाफा कमाया है, हम यहाँ कारोबार करते हैं, हम पाकिस्तान में सस्ती बिजली के लिए अपने आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट्स विड्रॉ करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में बिजली महंगी की आफत से दो चार है और इस आफत का मिलकर मुकाबला करना होगा और हुकूमत को डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हुकूमत पावर में। मैं इन कारोबारी हजरात से, ये जो बड़े नाम हैं जी, ये जो अरबपति बिलियनर्स और बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, जिनको कैपेसिटी पेमेंट्स ना लेने से उनकी दौलत कम नहीं हो जाएगी। कहाँ है ऐसे लोगों के खिलाफ शर्म आनी चाहिए, यकीन कीजिए। बिल्कुल ठीक है, मैं ब्रेक पर जाती हूँ। ब्रेक से वापस आने के बाद मुज़म्मिल साहब यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो अपना एक इंकशाफ किया उस पर भी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, मुज़म्मिल सॉलवर्दी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं और अब बात ख्वाजा आसिफ के अहम इंकशाफ के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि अप्रैल 2019 में जनरल फैज़ हमीद ने जनरल बाजवा के ससुर के घर पर उनसे मुलाकात की और ये पूछा कि आप जनरल बाजवा की तौसी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, जिस पर ख्वाजा आसिफ के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम बानी पीटीआई से बिल्कुल तंग आ चुके हैं और आप जून तक पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में वफाकी हुकूमत ले लें। मुज़म्मिल साहब और कितने इंकशाफात? देखिए, अब ये बात हो रही है अप्रैल 2019 की, अदम एतमाद तो जाकर आई फिर फरवरी 2022 में, 3 साल बाद। इसका मतलब है ये जो ऑफर थी ये मटीरियलाइज नहीं हुई, कोविड की वजह से डिले हो गई ना। इसके बाद उन्होंने कहा जून में पंजाब, कोविड की वजह से डिले हो गई ये ऑफर। कोरोना नहीं, कोविड में अदम एतमाद तो आ ही सकती थी ना। कोविड में कौन सा जंग लड़नी थी कि कोविड में नहीं हो सकती, जंगी थी। आप मेरी बात समझे। नहीं सवाल, बल्कि कोविड में तो ज्यादा आसान था ना, जूम पे ही हो जाना था सारा कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि अप्रैल 2019 में जब का वाकया है, पहली बात तो ये समझें कि ये डील मटीरियलाइज ना हुई क्योंकि अदम एतमाद तो जाके फरवरी 2022 में इसके 2 साल बाद आई, बल्कि 3 साल बाद आई। अब 19 के बाद 20 आया, 20 के बाद 21 आया, 21 के बाद 22 में जाके आई। तो एक तो ये पुरानी 19 की बात है, ये डील मैच्योर नहीं हुई। और जनरल फैज़ साहब की ये मुलाकात में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि उन्होंने कहा कि PMLN ने कहा कि हमारी कोई शराइत नहीं है और हम उन शराइत के बगैर ही आपको वोट डालेंगे। लेकिन बाजवा साहब की तौसीह के कानून को वोट ज़रूर मुस्लिम लीग नून ने डाला और वो एक गेम चेंजर था, पॉलिटिकली एक गेम चेंजर था जिससे आगे रास्ते बने। चाहे वो रास्ते बनने में 3 साल लग गए, लेकिन उसके नतीजे में रास्ते बने और हम ये नहीं कह सकते कि उसके नतीजे में रास्ते नहीं बने। और वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सरप्राइज था। आजकल जैसे सरप्राइज बानी PTI देने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी लड़ाई के बाद अब वो सुलह की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह सारी लड़ाई के बाद PMLN ने भी सुलह की कोशिश की और वो वोट के जरिए उन्हें चांस मिल गया। दिस इज जस्टिफाइड। क्या ये ठीक है कि बंद कमरों में कुछ फैसले कर लिए जाएं और ये फैसला सामने आ जाए कि हुकूमत चल नहीं रही, इसलिए हुकूमत से इस टाइम वापस इक़्तिदार ले लेना चाहिए और दूसरी एक पार्टी तैयार कर लेनी चाहिए? एग्जैक्टली जो हुआ वो अब रिपीट होगा, तो आपको लगता है ये ठीक है?
نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آئینی طریقے سے حکومت دیکھیں 2 طریقوں سے پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہیں. ایک تو مطلب غیر آئینی طریقے سے حکومتیں بدلی جاتی ہیں، جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے، آپ عدالتی فیصلوں کے ذریعے حکومتیں بدلتے ہیں. یہ آئینی اور غیر آئینی ہونے کے فیصلے تو بند کمروں میں ہی ہوتے ہیں نا مزمل صاحب؟ نہیں دیکھیں، اگر آئینی طریقے سے آپ کوئی حکومت بدلتے ہیں جس کی آئین میں گنجائش موجود ہے تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آئین میں یہ تو نہیں لکھ سکتے کہ جو حکومت آ گئی ہے اس کو 5 سال کے لیے چھیڑا نہیں جائے گا. آپ کا عدم اعتماد کیوں رکھی گئی ہے عدم اعتماد کا آپشن کہ اگر حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے تو اس کے اتحادی چھوڑ گئے ہیں تو عدم اعتماد آ سکتی ہے. تو بیساکھیوں پہ کھڑی عمران خان کی حکومت کھڑی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر تھی. وہ اپنے پاؤں پر تو کھڑی نہیں تھی. کیا آپ کہیں کہ وہ اس کو گرانے کے لیے کوئی عمران خان، وہ تو کھڑی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر تھی، تو اسٹیبلشمنٹ ہی اس کو وہ بیساکھیاں ہٹا دیتی تو وہ گر جانی تھی. وہ چاہے اپریل 2019 میں گر جاتی، 20 میں گر جاتی، 21 میں گر جاتی، 22 میں گر جاتی. وہ کوئی الیکشن جیت کر تو آئے نہیں ہوئے تھے کہ آپ کہیں کہ جی ان کی اپنی اکثریت تھی. وہ ایک اتحادی حکومت تھی. آج جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ایک اتحادی حکومت ہے. صبح پیپلز پارٹی یہ اتحاد چھوڑ دے یہ حکومت گر جائے گی، 1 منٹ نہیں لگے گا. اب آپ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے لیے چھوڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ کرا دیں تو صبح گر جائے گی. اگر آئینی طریقے سے گر جائے گی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر اکثریت کھو دیں گے تو پولیٹیکلی کھو دیں گے. تو میرے خیال میں اگر کوئی کام آئین کے دائرے میں ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، ہر غیر آئینی کام کا راستہ روکنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن مزمل صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ اب آئین اور غیر آئینی چیز کیا ہے؟ آئین کو ری رائٹ کرنے کے حوالے سے بھی بڑے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں. مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی حل ہونے کو نہیں آ رہا تھا کہ اب حکومت کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی نے یہ جو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے، اب ایک یہ نیا مسئلہ سامنے کھڑا ہو چکا ہے. اور اس میں صورتحال یہی ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 اور 104 کو تبدیل کرنا مقصود ہے، جس کے مطابق آزاد امیدواروں کو آئینی اور قانونی طور پر متعینہ مدت کے بعد سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے کا حق حاصل ہی نہیں ہے. دیکھیں، پہلے تو آئین میں 3 دن کا وقت تھا، سپریم کورٹ نے اس وقت کو 15 دن کر دیا. کھیل تو سپریم کورٹ نے شروع کیا نا آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا. اب جب سپریم کورٹ نے 3 دن کو 15 دن خود کر دیا تو پھر پارلیمان نے کہا کہ زیادہ بڑا اختیار تو ہمارے پاس ہے، ہم پابندی لگا دیتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں پارلیمان اور عدلیہ کی لڑائی ہوگی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پارلیمان یہ لڑائی جیت جائے گی. اس کی وجہ ہے کہ جوڈیشری حکومت کو گرا سکتی ہے. میں مانتا ہوں جوڈیشری کی وزیر اعظم کو صبح ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے، وزیر نکال کے باہر پھینک سکتی ہے، اپنے ایک جوڈیشل آرڈر سے 2 جج چاہیں پوری حکومت گھر بھیج دیں. لیکن پورے 17 جج بھی بیٹھ کر پارلیمان کو گھر بھیجیں یہ بڑا مشکل ہے. ساری پارلیمان پر توہین عدالت لگا دیں یہ بڑا مشکل ہے. پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کو بیک جنبش قلم ختم کرنا بھی بہت مشکل ہے. عمر اتاب بندیال صاحب نے یہ کیا، لیکن وہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ آپ نے قانون بننے سے پہلے قانون کو اوپر سٹے دے دیا اور سب نے اس کو نیگیٹیولی لیا. لیکن آج کر بھی دیا جائے تو پارلیمان دوبارہ قانون بنا لے گی. تو یہ جو پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان لڑائی ہے، ویسے تو یہ کوئی ہیلدی لڑائی نہیں ہے، ہمیں اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب اس وقت جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کے جواب میں پارلیمنٹری ایکٹیویزم آ گیا ہے. اگر جوڈیشل ایکٹیویزم کو برابر کرنا ہے یا اس کا ترازو برابر کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کے ایکٹیویزم سے ہی برابر ہو سکتا ہے. یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ تھا، یہ ایک بڑے اسکرپٹ کی طرف سب بات کر رہے تھے کہ اس کے بعد یہ ہو جائے گا، اس کے بعد انتخابات نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، اس کے بعد حکومت چلی جائے گی، اس کے بعد یہ ہو جائے گا. تو کہیں نہ کہیں اس کو بریک لگانے کے لیے حکومت نے اپنی عددی اکثریت کو استعمال کیا ہے، اور یہ ایک چیس میٹ کی لڑائی ہے، شطرنج کی لڑائی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جن 8 ججز نے وہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ دیا ہے وہ اب کیا کر سکتے ہیں. اس قانون کو معطل کر کے کہیں گے کہ نہیں آپ مخصوص نشستوں والے فیصلے پر عمل کریں. نظر ثانی اپیلیں بھی موجود ہیں، اس پر ایک الگ مسئلہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بھی کرنی ہے. قاضی صاحب کی تو پوری کوشش ہے، قانون بنے گا اس کو ایک پیش، لیکن دیگر ججز بھی رکاوٹ بن رہے ہیں. یہ جو قانون بنے گا اس پر ایک پیشی کے پیش کے اوپر سٹے بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جوڈیشری کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہے.
इस कानून को एक पेशी में मुअत्तल कर सकती है जुडिशरी। हेयरिंग सुबह करेगी, आप लगेगी और कहेंगी कि हमने कानून मुअत्तल कर दिया, पुराने कानून के तहत ही किया जाए। तो जुडिशरी के पास भी बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। ये कानून बनने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि पार्लियामान ये लड़ाई जीत गई है। लेकिन सर पीपल्स पार्टी टफ टाइम दे रही है गवर्नमेंट को, नून लीग को। हत्या की इज्जत का कानून हो या दीगर मामले, आर्टिकल 6 लगाना हो या पीटीआई पर पाबंदी, अब भी सूरत हाल ये है कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सामने आ चुका, पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्लियर है। नून लीग अकेली है जो कि इस टाइम इस रास्ते पर खड़ी है और अदलिया से महाजराई करना चाहती है। कैसे जीत पाएंगे? नहीं, पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर नजरसानी की दरखास्त भी दायर की है, लेकिन उनके बयानात सख्त बयानात। और जब ये कानून पास होगा तो आप बेफिक्र रहें, आसिफ जरदारी साहब इस पे दस्तखत भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आसिफ जरदारी साहब इस कानून को 14 दिन रोककर वापस पार्लियामान के पास भेज देंगे, फिर पार्लियामान इसको फिर पास करेगी। ये आरिफ अलवी वाला काम नहीं होगा आसिफ जरदारी साहब के साथ। अच्छा। अगर आपका ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस कानून को सपोर्ट नहीं कर रही, तो आप मुझे ये बता रही हैं कि अगले 7 दिन में जब ये कानून पास हो जाएगा कौमी असम्बली और सेनेट से, तो सदर ममलिकत इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है सदर ममलिकत 24 घंटे में दस्तखत कर देंगे। अच्छा, पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब कि हम ये क्लिप सेव कर लें आपका दोबारा चलाने के लिए 7 दिन के बाद। मुझे अगर सदर ममलिकत ऑन बोर्ड ना हो तो ये कानून पास ही ना किया जाए। लेकिन नदीम अफजल चंद गवर्नर पंजाब के इस तरह के नजरसानी की दरखास्त दायर की है। ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं ना गवर्नर पंजाब के। वो सियासत है। देखिए, हर इशू पर आपका अपना मौकफ है। मतलब किसी इशू पर वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं तो वोट, बजट पे उन्होंने गवर्नमेंट को वोट दिए हैं। अब भी जब वोट देने की बारी आएगी कौमी असम्बली में और सेनेट में, तो मुझे ये लगता है कि वो मुस्लिम पीटीआई के हक में वोट नहीं डालेंगे। वो मखसूस नशिस्तों का ये रास्ता रोकने का जो कानून है, इसके खिलाफ वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि वो तो इस फैसले के खिलाफ खुद नजरसानी की दरखास्त दायर कर चुके हैं। वो कौन सा समझते हैं कि ये फैसला बहुत अच्छा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, हम इसको सपोर्ट करते हैं जो वो इस कानून का रास्ता रोकें। वो भी इस फैसले को गलत समझते हैं और री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझती है पीपल्स पार्टी, लिहाजा वो वोट भी डालेगी और सदर इस पर दस्तखत भी करेंगे। लेकिन खान साहब आर्टिकल 6 और पाबंदी वाला मामला है, वो और मामला है। लेकिन खान साहब तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, इमरान खान साहब के मुताबिक कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फिलहाल समुंदर में डूब रहे हैं और खुद को बचाने के लिए और कुछ नहीं, तो इस तरह के टैक्टिक्स हैं और कुछ नहीं है। देखिए, पता नहीं इक़्तिदार का समुंदर है और इक़्तिदार के समुंदर में तो सभी डूबना चाहते हैं। फिलहाल तो वो इक़्तिदार के समुंदर में है। अच्छा। और इक़्तिदार के समुंदर में तो सभी डूबना चाहते हैं। अभी वो कोई जेल के समुंदर में नहीं है, ऑपोजिशन के समुंदर में नहीं है, क्राइसिस में नहीं है। उनकी 2 सूबों में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, सदर का ओहदा उनके पास है, चेयरमैन सेनेट है, वो बेहतरीन इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब है और मरकज़ है, वो अपना बेहतरीन इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं। अभी तो कोई ऐसी तहरीक भी नहीं चल रही कि हम कहें कि जिसके नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी। तो मेरे नहीं ख्याल में कि कोई आपको बानी पीटीआई के इस बयान को इस तरह लेना चाहिए कि वो समुंदर में डूब रहे हैं। समुंदर में जब डूब जाएंगे तो फिर खान साहब तर जाएंगे। अभी तो खान साहब के तरने की हमें कोई बाहर निकलने की या कुछ ऐसी बात नजर नहीं आती है। वैसे कोशिश है ये पूरी होने नहीं दे रही हुकूमत, क्योंकि एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। एक दौर में बानी पीटीआई कहते थे कि इन दोनों की पाकिस्तान की सियासत में कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। रोज कहते थे कि इन दोनों पार्टियों को खत्म करके ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। करप्शन खत्म हो सकती है। ना वो इनको मार सके ना ये उनको मार सके उनकी, तो इसलिए ये जो माइनस करने का खेल है ये खत्म होना चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ। जो इमरान खान साहब ने 4 साल माइनस करने का खेल खेला है, अब वो खुद उसका शिकार हैं। जो कुआं उन्होंने खुद खोदा था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए, आज वो खुद उसमें गिर चुके हैं और अब वहां से उन्हें निकलने का भी रास्ता नहीं मिल रहा। मैं नहीं समझता उनके लिए कोई इतनी अभी कोई ऐसी सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस नहीं बन सकती, क्योंकि हम देख रहे हैं रिहाइयां तो हो रही हैं। जो गिरफ्तार कारकुन रहनुमा थे उनकी एक के बाद एक हमारे सामने जो है वो नज़र आ रही है कि आलिया हमजा भी ज़मानत उनकी मंजूर हो चुकी है, उनकी भी रिहाई हो सकती है। और अगर यास्मीन राशिद साहिबा भी बाहर आ जाती हैं तो फिर क्या फ्यूचर होगा नून लीग का? नहीं, मैं नहीं समझता ये कोई इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, इम्पोर्टेंट रिहाई तो बानी पीटीआई की है ना, वो मुश्किल में नजर आती है। इम्पोर्टेंट बात तो एस्टैब्लिशमेंट
इम्पॉर्टेंट बात तो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान सीज फायर की है ना। अभी आप देखें 5 अगस्त को जलसा अनाउंस किया पीटीआई ने, जी इजाजत मिल गई इस्लामाबाद में। हाँ जी, पर अब वो उस जलसे को सवाबी ले गए हैं, ये जलसा होगा या नहीं 22 होगा। अगस्त को इस्लामाबाद में भी जलसा करने जा रहे हैं। 22 अगस्त अभी बहुत दूर है, अभी तो मेरा मतलब है आज यकम है, 22 तक पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी तो 5 अगस्त की बात करें ना, अभी तो 22 की कौन बात करेगा, 22 तक देखेंगे आगे क्या हुआ। अभी तक तो जब भी उन्होंने अनाउंस किया है पीटीआई ने, उसके बाद पीटीआई ने जो है उसको विड्रॉ किया है और मुलतवी किया है। अब तो पीटीआई के अपने हामी भी उनके जलसे मुलतवी करने पर, लेकिन ये जलसे की हिदायत इमरान खान साहब की तरफ से अडयाला जेल से आई है कि 5 अगस्त को हर सूरत सवाबी में जलसा किया जाए, आवाम को सड़कों पर निकाला जाए, जलसे में मैक्सिमम लाया जाए। सर आखिरी सवाल, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाना चाह रही हूँ। चेयरमैन एफबीआर की क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट का फैसला किस तरफ इशारा कर रहा है, किससे नहीं बन पा रही? मेरे ख्याल में चेयरमैन एफबीआर को बहुत फ्री हैंड दिया प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने बहुत सारे अफसरों को एडमिनिस्ट्रेटिव पूल में भी भेजा और बहुत ही फ्री, इतना फ्री हैंड पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिला जितना टवाना साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस से मिला, और उनको पूरा आशीर्वाद भी मिला। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी मैटर करती, बट ही कुडंट डिलीवर। जो उनके बारे में जो सबसे बड़ी बात है कि जो वादे और जो पिक्चर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पेश की कि वो ये कर लेंगे, वो उसका 10% भी नहीं कर सके। मतलब आप ये तो कहते हैं कि 100% किसी की कारकर्दगी नहीं हो सकती, लेकिन 50% तो होनी चाहिए। उनके बारे में ये राय है कि वो सिर्फ बातें करते हैं, कारकर्दगी सिफर है। ठीक। और सिर्फ बातों की वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से टाइम बाय किया, बल्कि जब कारकर्दगी का वक्त आया तो उनकी कारकर्दगी सिफर निकली, और सिफर कारकर्दगी के साथ शहबाज शरीफ के साथ गुजारा बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 3 लोग अब चेयरमैन एफबीआर की दौड़ में हैं। अच्छा, कौन कौन? एक तो हामिद अतीक सरवर साहब हैं, ठीक है, वो रेमिट के सरबराह लगे हुए थे और आजकल वो रेमिट से फारग हुए हैं, वो लग सकते हैं। फैज सदर साहब हैं जो ये एफबीआर की एकेडमी के सरबराह हैं, वो लग सकते हैं। ये दोनों अफसरान एडमिनिस्ट्रेटिव पूल में नहीं गए हुए थे, तो लिहाजा अगर आपका ये चॉइस है कि आपने कोई ऐसा अफसर लेना है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पूल में ना हो, तो फिर तो ये 2 चॉइस है। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पूल से भी अफसर लेना चाहें तो फिर आफाक कुरैशी साहब का नाम भी आ रहा है, क्योंकि उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला हुआ है, और टवाना साहब ने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पूल में डाल दिया था। हालांकि उनके जो काम है उसको ऊपर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी एफबीआर के काम पे मिला हुआ था, और सब ने उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पूल जाने पर बड़ी हैरानगी का भी इजहार किया था, तो वो भी रेस में है। लेकिन मेरे ख्याल में अगले चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। चेयरमैन एफबीआर की जो अपॉइंटमेंट है वो पाकिस्तान की अहम तरीन तैनाती में से है। बिल्कुल, और देखना ये है कि आने वाले टाइम में who will be on the position, senior position। देखिए ना, इमरान खान साहब के दौर में भी शब्बर जैदी साहब आए थे और आउट हो गए। हाँ जी, कितने ही चेयरमैन एफबीआर आए तो आउट हो गए। हाँ जी, बहुत यू टर्न्स लिए गए थे। लेकिन मेरा ख्याल है टवाना साहब ग्रेड 22 भी लेना चाहते थे, और उन्होंने अपने जितने कंपेटिटर्स थे फॉर ग्रेड 22 वो सब भी साइड लाइन किए। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, ना उन्हें ग्रेड 22 मिला और ना वो अपना टेन्योर पूरा कर सके। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक से वापस आने के बाद लाहौर में जो हर जगह पानी खड़ा है बारिश के बाद, वो कैसे निकलेगा इस पर बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात लाहौर की, जहां बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट चुका है और 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। लाहौर के जितने मेन हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इस टाइम पानी ही पानी है। अंदरून की बात मैं अभी स्पेसिफिकली नहीं करूंगी, मैं सिर्फ बात करूंगी उन पोश एरियाज़ की लाहौर के जहां पर पानी मौजूद है सड़कों पर, गलियों पर, और किसी सूरत की वहां पर किसी सूरत हमें नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत उस पानी को निकालने के लिए कुछ कर रही है। वीडियोस हमारे पास सामने मौजूद हैं, और पंजाब हुकूमत टिकटॉक वीडियोस बनाने में मेरे ख्याल से सिर्फ इस टाइम मसरूफ़ नज़र आ रही है, लेकिन अमली तौर पर नज़र नहीं आ रहा कि पानी कैसे निकलेगा, क्योंकि आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिश की पेशगोई भी हो चुकी है। मुदम्मिल साहब, कैसे निकलेगा पानी, क्योंकि हॉस्पिटल इस टाइम सबसे ज़्यादा मसले की वजह है, क्योंकि ओपीडीज़ में पानी है, अब इमरजेंसीज़ में पानी है, और मरीज़ इस टाइम परेशान है। अच्छा, जिस वक्त मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अब ये शिराज से हमें पूछना पड़ेगा, शिराज हमारे साथ होंगे, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक तो सर्विसेज हॉस्पिटल क्लियर है,
बाकी हॉस्पिटल्स क्लियर कर दिए गए हैं और हॉस्पिटल्स में जो पानी आया था वो निकाल दिया गया है। मेयो हॉस्पिटल में है, और काफी हद सर्विसेज में तक है, जो जनरल लाहौर- हॉस्पिटल में भी है। बहरहाल बात शिराज इसको कंफर्म करेंगे, क्योंकि मैंने तो जो सोशल मीडिया देखा है उसके मुताबिक तो कुछ क्लियरेंस की फोटोज भी मैंने देखी हैं, लेकिन 44 साल रिकॉर्ड पानी तो आप इमेजिन करेंगे कि सुबह 4 बजे मेरे घर में भी आ गया, कभी नहीं आया जिंदगी में। ऊंचा है मेरा घर, लेकिन इतनी बारिश हुई है कि ग्राउंड फ्लोर पे उसके भी पानी आया। और इतनी बारिश, अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अब इतनी बड़ी बारिश जो 44 साल रिकॉर्ड टूटा है, इसके नतीजे में पानी ने तो खड़ा होना ही था। और ये तो नहीं कहा जा सकता कि लाहौर जो है वो इतनी बड़ी बारिश के लिए का पानी निकालने के लिए बनाया गया है और वहाँ 44 साल रिकॉर्ड टूट जाएगा तो वहाँ वो पानी खड़ा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, ये एक असूली बात है। और बिलावल साहब का शानदार फिक्रा है कि ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी खड़ा होता है, कम बारिश होता है तो कम पानी खड़ा होता है। ये नहीं कहा लेकिन था शिराज बिलावल हमारे साहब साथ ने। हैं। बिल्कुल, ब्यूरो चीफ हम न्यूज़ लाहौर शिराज है हमारे हसनात ने साथ। हमें ज्वाइन किया है। शिराज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी की सूरत हाल जी, शिराज एक तस्वीर तो सोशल मीडिया पे पेंट की जा रही है कि हमने पानी निकाल दिया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। आप क्या हमें देते हैं? फर्ज कर लें मैं आपसे पूछूं लक्ष्मी में पानी खड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ लक्ष्मी एक टेस्ट केस है ना कि लक्ष्मी चौक में लाहौर में सबसे ज़्यादा पानी खड़ा होता है, तो क्या आज लक्ष्मी में पानी निकल गया या खड़ा है? थैंक यू मुजम्मिल एंड थैंक यू सना। इस वक्त मुजम्मिल लक्ष्मी में पानी नहीं खड़ा, ना सिर्फ लक्ष्मी में पानी नहीं खड़ा, अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन जो 50% चॉकिंग पॉइंट्स थे वो तकरीबन 10 बजे के करीब बारिश स्लो हुई थी और अब तक कोई 7-8 घंटे में ये पानी काफ़ी निकल चुका है और ख़ास तौर पे जो चॉकिंग पॉइंट्स थे वहाँ से पानी निकाल दिया गया है। मगर अभी जो शहर के कम पोश इलाके हैं या मिडिल क्लास एरियाज़ हैं या पुअर एरियाज़ हैं, वहाँ पे पानी मुसलसल खड़ा हुआ है और उनकी गलियाँ महल्ले तालाब का मंजर अभी भी पेश कर रहे हैं, मगर जो चोकिंग एरियाज़ थे वो कंपैरेटिवली क्लियर कर दिए गए हैं। अच्छा शिराज, हॉस्पिटल्स की इस टाइम सूरत हाल क्या है? क्योंकि हमारे पास विजुअल्स हैं मेयो हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, इसके अलावा जनरल हॉस्पिटल्स के भी बहुत ज्यादा पानी है वहाँ पर। विजुअल्स हैं आपके पास? नहीं सर, पानी तो था नहीं, ना सर, वो पानी था। आपके पास और सुबह अभी की है, मेरे पास जो पानी खड़ा विजुअल्स हैं वो हमीद लतीफ हॉस्पिटल की जो इस टाइम पार्किंग है वहाँ पर भी पानी खड़ा है। मतलब वो तो बिल्कुल मेन एरिया ना, वहाँ कैसे पानी जा सकता है? अच्छा मैं इसमें क्लियर करूँ थोड़ा सा। एक तो मुजम्मिल एग्जैक्टली जो फोकस किया गया वो इन एरियाज पे किया गया और काफ़ी हद तक इन हॉस्पिटल्स को क्लियर कर दिया गया। ये हॉस्पिटल सुबह से इनमें पानी भर गया था, मगर मैं कुछ चीज़ें बड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जिस तरह से गवर्नमेंट को नज़र आना चाहिए था हमें सुबह, अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट सी दैट। इससे पहले हमने मुख्तलिफ एराज देखे हैं पॉलिटिकल और वहाँ पे हमें नज़र आता था कि किस तरह मिनिस्टर स्पेशली और MPAs MNAs बाहर निकलते थे। बट वी जस्ट सॉ द 2 विजुअल्स ऑफ 2 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सलमान रफीक एंड मरियम औरंगजेब, और जो भी ज़्यादा उनकी तरफ से रिलीज़ की गई और एक चीफ सेक्रेटरी की तरफ से रिलीज़ की गई। सो अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट सी द हायरार्की, द ब्यूरोक्रेसी, द पॉलिटिकल वंस ऑन द स्ट्रीट्स। हाँ, वासा लगा रहा, डेफिनेटली जितने वो एफर्ट्स पुट इन कर सकते थे उन्होंने किया। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि रिसोर्सेज क्या हैं। तो जितनी बारिश हुई है, और मैं थोड़ा सा उसको और ऐड ऑन करूं, जो लेटेस्ट फिगर आए हैं उसमें 360 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट के करीब रिकॉर्ड की गई, जिसने लिटरली 44 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज़ है तो वो इतनी बारिश थी कि उसके कई घंटे बारिश रुकने के बाद भी पानी नहीं निकल सका, क्योंकि जो रिसोर्सेज थे वो आपके लिमिटेड थे। फिर उन्होंने उसको डिफाइन और आइडेंटिफाई किया कि वो कौन से चॉकिंग पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पर आपको मॉल को क्लियर करना ही करना है, आपको गुलबर्ग को क्लियर करना ही करना है, आपको गार्ड टाउन अंडर पासिस को क्लियर करना ही करना है, आपको हाई कोर्ट चौक को क्लियर करना ही करना है। लक्ष्मी चौक एक टेस्ट केस था, मगर वहाँ पे दोबारा से ड्रेन बनाई गई, इसके बावजूद वो चौक होता है, तो आपको उसको क्लियर करना ही करना है। लेकिन ये एरियाज क्लियर करने के बाद जब आप आते हैं दूसरे एरियाज की तरफ, मसलन किनाल, हरबंसपुरा, ये शादरा, आपका वॉल्ड सिटी, ये जो शमाली लाहौर, फिर आप अगर हरबंसपुरा की तरफ चले जाएं, कैंटोनमेंट्स चले जाएं, इचरा चले जाएं, ये आपके समनाबाद और बाकी एरियाज, तो यहाँ पे अभी भी पानी गलियाँ भरी पड़ी हैं, खड़ी हुई हैं। डेफिनेटली उन्हें निकलने में टाइम लगेगा। आपका सेवरेज सिस्टम की ये कैपेसिटी नहीं है। देखिए, आपने 11 अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने थे, आप सिर्फ उसमें 3 बना सके। कजाफी में चौथा बनना था, वो नहीं हो सका। वो तीनों वाटर टैंक फिलअप हुए हैं और तीनों वाटर टैंक की वजह से ये जो जिस एरिया में हम बैठे हैं, मिसाल के तौर पर लॉरेंस रोड, मेसन रोड, ये सबसे ज़्यादा डूब जाता था। 4-4, 5-5 फुट पानी यहाँ पे खड़ा होता था, मगर उन वाटर टैंक्स की वजह से वो पानी उस वाटर टैंक में सक हुआ।
मेरा ख्याल है 14 लाख गैलन उसकी कैपेसिटी एक वाटर टैंक की। तो 3 वाटर टैंक है। कश्मीर रोड का, कश्मीर रोड गवर्नर हाउस की वजह से चोक होता था, वो उसमें काफ़ी बचत हुई। शेरावाला आपका वार्ड ये तो उस्मान बुज़दार ने बनाए ना। हाँ, मैं यही आपसे बात कर रहा था कि 11 टैंक्स तो उस्मान बुज़दार ने बनाए, 11 बनने थे, लेकिन नहीं ये 3 बनाए तो उस्मान बुज़दार ने ना। जी, उसके बाद मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए अब कज़ाफ़ी के नीचे बनना था और वो बहुत बड़ा वाटर टैंक था, नहीं बनाने दिया कज़ाफ़ी के मैनेजमेंट में। उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं बनाने देना, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये 11 जिन चौक्स पे आइडेंटिफाई किए गए थे, टीपा ने इसकी निशानदेही की थी, इसके ऊपर पूरा सर्वे वर्क हुआ था, बजट से एलोकेशन थी। अगर ये बन जाते तो जो आज हम हर दफ़ा इस बारिश के बाद ये बहस कर रहे होते हैं कि पानी निकला या नहीं निकला, या कहाँ से निकलेगा या कहाँ से नहीं निकलेगा, हम इससे काफ़ी हद तक बचते और वो वाटर टैंक उसको कवर कर लेते। क्योंकि जो फ्लो सीवरेज का होता है, ये वाटर टैंक उसमें पानी को स्टोर करते हैं और उसके बाद पंपिंग के जरिए। शिराज ये शुएब की क्या कहानी है? पानी निकाले और क्या करें। सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है शुएब की क्या कहानी है? नहीं मुज़म्मिल साहब, मुझे यहीं से सवाल थोड़ा अटैच करने दीजिए। शिराज, वेयर इज सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा? बिकॉज लोग मिस कर रहे हैं उनकी वीडियो। मतलब उनको होना चाहिए था इस बारिश में, सड़कों पे लोगों के साथ उनके दुख दर्द में। इससे पहले हम देखते रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब होने की हैसियत से बड़े ज़्यादा अवामी राब्ते करती रही हैं, उनके लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। अब बारिश के पानी में व्हाई शी इज़ नॉट आउट? मरियम नवाज साहिबा कहाँ पे, इसका जवाब तो शायद मेरे से बेहतर मुज़म्मिल साहब बता सकें। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा की कुछ वीडियोस रिलीज हुई, ख्वाजा सलमान की वीडियोस रिलीज हुई जिसमें वो हॉस्पिटल में थे, इमरान अजीज साहब फिर भी गायब हैं। वो वीडियोस आई। लेकिन मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की कि आप इतनी बड़ी बारिश में वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये दैट वाज अ टेस्ट एंड ट्रायल केस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। Their office bearers, their ministers were supposed to be on the streets, were helping the bureaucracy, guiding them, dictating them. Unfortunately, we couldn't see them. ऐसा कोई चीज़ देखने में नहीं। लेकिन शिराज, आप ये तो कह रहे हैं कि 44 साल रिकॉर्ड है जो बारिश का हुई है, इसका आप इस वक्त जब मेरे साथ ये शो कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं 60-70% पानी निकल गया है। जी मुज़म्मिल, मैंने आपसे कहा जो मेन चौक एरियाज हैं उनमें से 50% क्लियर हो गए हैं। जो मेन आपके पोस्ट लोकेलिटीज हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि अगर इतनी बारिश, अगर ये कराची को से हम कंपैरेटिव करें तो कराची की निस्बत तो बहुत जल्दी पानी निकाल दिया गया है। सर, कराची से तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन किसी सूरत बनता ही नहीं है। वहाँ के तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बुरी तरीन सूरत हाल है, जो हालत है, वहाँ तो साफ पानी पीने को नहीं मिलता, तो बारिश का पानी वो कैसे मैनेज करेंगे? बड़े शहरों का आपस में ही कंपैरिजन करना है, शहरों का गांव से तो करना नहीं। मुज़म्मिल, फिर हम लाहौर का कंपैरिजन हम पेरिस से कर लें। सर, पेरिस तो बनता था ना। नहीं, क्यों आप देखें, नहीं हम पाकिस्तान की किसी बड़े शहर से करेंगे नहीं, हम करेंगे, हम पेरिस से करेंगे, क्योंकि हमें पेरिस के तो दावे करता था ना कोई। से कर लें, नहीं आप कराची से कर लें, पेशावर से कर लें, किसी जगह से कर लें, तो उसकी निस्बत तो आपको बेहतर कारकर्दगी नजर आएगी कि फिर बहुत जल्दी निकाल लिया पानी। देखिए मुज़म्मिल, पानी निकालने में और पानी निकलने में दोनों बड़ी करीब की चीज़ें हैं और दोनों में बड़ा फ़र्क है। हमें इस चीज़ को एडमिट करना होगा कि पिछले कुछ सालों में जब लाहौर में लक्ष्मी चौक 6-6 फुट तक डूब जाता था, और हमने माजी में उसकी एग्जांपल्स भी देखी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो हुई। जो भी गवर्नमेंट आई, चाहे बुज़दार ने वो अंडर वाटर टैंक्स बनाए या उससे पहले शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने लाहौर के सीवरेज के ऊपर क्या काम किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम किया गया उसके आउटकम्स तो डेफिनेटली आ रहे हैं। और इतनी बारिश के बाद जो इतने इलाकों को भी क्लियर किया गया, डेफिनेटली वो एक इट्स अ गुड अचीविंग थिंग। बट द रियलिटी ऑन द अदर हैंड कि हमने किन पर्टिकुलर एरियाज को टारगेट किया, हमने उन पर्टिकुलर एरियाज को टारगेट किया जहां पे ऑलरेडी चौकिंग पॉइंट्स बड़े रिनाउंड थे। बस आपको पता है कि मीडिया लक्ष्मी चौक जाता है बिकॉज लक्ष्मी चौक इज अ ट्रेंड माइलस्टोन, अ सेट बैरियर के लक्ष्मी चौक से पानी क्लियर होना चाहिए, हाई कोर्ट चौक क्लियर होना चाहिए, आपको उसकी रीजंस का पता है। देयर आर मेनी अदर वेज जहां से आपके वीवीआईपी ने निकलना है और बाकी सारी चीजें होनी है, तो उन एरियाज को क्लियर किया गया। हाँ, जिस तरह मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर हम सर्विसेज हॉस्पिटल कितनी देर में क्लियर हुआ, मैं ये पूछूं, सर्विसेज हॉस्पिटल कितनी देर में क्लियर हुआ? मुज़म्मिल, सुबह 10 बजे के बाद ये सारी कोशिशें जो हैं वो करनी शुरू की गई हैं। और एटलीस्ट नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बारिश तो सुबह हुई, 2 घंटे लगे, कितने बजे 3 तक घंटे सर्विस लगे, हॉस्पिटल क्लियर था? 6 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, इट नॉर्मली 2 घंटे लगे, कितनी देर में क्लियर? ये सारे जो हॉस्पिटल्स थे इनिशियली इनको 3 से 5 घंटे लगे हैं क्लियर होने में जी। पंप्स लगा के वहां से रोड को क्लियर किया गया 3 से 5 घंटे में। और देखें, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हुआ। दिस इज नॉट अबाउट द वासा, दिस इज अबाउट द सीटीडी, वो सीबीडी एज वेल। अब वॉल्टन सीबीडी के पास है, वहां पे एक तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो सूरत हाल वहां पे थी बदतरीन है। अब अगर आप बंद रोड कॉरिडोर की बात करें तो बंद रोड कॉरिडोर चूंकि
VIP इलाका नहीं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो शदीद बुरे हालात हैं। अगर मैं अब इसको सब्जी मंडी से कंपेयर करूँ जिसने कल शहर को सारी सब्जी प्रोवाइड करनी है या आज करनी थी, तो वहाँ पे कोई बंदा पैदल भी नहीं जा सकता जो उसके हालात वहाँ पे। सो अगेन वेरी करता है कि किन लोकेलिटीज को प्रेफर किया गया। हाँ, दे आर क्लेमिंग कि अब वो बाकी एरियाज की तरफ जाएंगे और अगर बारिश नहीं होती, जिसकी ऑलरेडी प्रेडिक्शन है कि दोबारा बहुत तेज बारिश प्रेडिक्ट है और बारिश हो जाती है, तो आई गेस दैट वुड बी अगेन अ मिजरी फॉर देम एंड दे विल बी अगेन इन अ डोल्ड्रम, जिसमें इनके लिए दोबारा से रात के टाइम में सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना और फिर पानी निकालना मुश्किल होगा। और फिर से अगर बारिश हो जाती है दे हैव टू कम अप फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एंड दैट इज हाउ टू। शिराज कह रहे हैं लाहौर की नहर भर गई है। हाँ जी, बहुत बारिश हुई तो नहर के से पानी सड़क पे आ जाएगा। मुजम्मिल एग्जैक्टली नहर और नहर के जो किनारे थे वो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे सड़क और नहर बराबर हुआ हुआ है। दैट वाज दिस इज व्हाट वी सॉ। इवन आप, मैं अस्क्रीज की बात कर रहा हूँ, अस्क्री 11 की फुटेज आई है जिसमें सुबह उसकी आउटसाइड पार्किंग सारी भरी हुई है, DHS सारा डूबा हुआ था और वहां पे उन लोगों ने अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज किए हैं। वो कैंटोनमेंट सिटी गवर्नमेंट के नहीं थे। कैंटोनमेंट का हमारा नेटवर्क कंपैरेटिवली सिटी गवर्नमेंट से वीक है। वहां की कई जो कच्ची आबादी हैं वो वहां पे अभी लोग सफर कर रहे हैं, वहां पे काफी ज्यादा पानी है। अगर बारिश होती है, देखिए हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाने हैं, देखना है कि अगर ऐसे इस तरह की सिचुएशन होती है हाउ वी कैन हैंडल देम। कैंटोनमेंट बोर्ड तो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है ना। हाँ, वो तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन द पॉइंट इज दिस, yeah, but the MPs are from there and they could actually come up. वहाँ के MPs जो है ना वो कंटोनमेंट बोर्ड को कह सकते थे। कंटोनमेंट बोर्ड का उनका अपना टैक्स कलेक्शन है। नहीं, उनके टैक्स कलेक्शन पे, उनके टैक्स कलेक्शन पे बोर्ड है, एग्जैक्टली उनके अपने रिसोर्सेज। लेकिन दोनों लाहौर के कैंटोनमेंट बोर्ड पे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो PMLN के मेजॉरिटी में है। एक बोर्ड तो पूरा उनका है, दूसरे बोर्ड में 7 मेंबर हैं, MPs वहां से उनके हैं, मल्टीपल चीजें हैं। देखिए इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि PMLN नहीं बाहर निकली, अगर मैं PTI के लाहौर से इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी कहीं नजर नहीं आए, तो दैट इज आल्सो एन एंगल एज वेल। लेकिन सर हुकूमत जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। सूरत हाल जो है, अगर ओवरऑल मैं सिर्फ लाहौर की, शिराज आपके साथ बात करूं, 70% आपको लगता है ना, अभी 8 बजने वाले हैं, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं ना जहाँ 70% पानी खड़ा है। लाहौर की अगर हम बात करें, नहीं निकल रहा पानी वहां से, और निकल सकता नहीं है इतनी जल्दी क्योंकि हमारे पास इतना मशीनरी नहीं है। आपका मशीनरी ब्लॉक, आपने मशीनरी लगाई है पोस्ट लोकेलिटीज पे। Exactly. अब जब वो वहां से फारिग होगी, अगर दोबारा बारिश ना हुई तो फिर उन गरीबों के इलाकों की सुनी जाएगी। और होगी बारिश होगी, हमारे तो होगी। हाँ बिल्कुल, अभी प्रेडिक्शन है कि 24 घंटे के अंदर दोबारा से बारिश होगी, तो फिर कल की सूरत हाल क्या होगी? फिर हम ये तो नहीं कह सकते बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। मतलब सब आप आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए बारिश आएगा तो पानी तो आएगा, बगैर पानी के बारिश नहीं हो सकती। बारिश जाएगा कैसे? सवाल कौन, इसका जवाब किसके पास? अब सवाल ये है कि जो पानी आएगा वो कितनी देर में निकल जाएगा। हाँ। हमने वो पानी निकालने का इंतजाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बारिश आएगी, बारिश के नतीजे में पानी आएगा, उस पानी को निकालने का इंतजाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम हुकूमत की कारकर्दगी को ऐसे जांचेंगे कि उन्होंने ये पानी कितनी देर में निकाला, क्योंकि हमने कोई ऐसा इंतजाम तो किया नहीं हुआ कि पानी खड़ा ही नहीं होगा, आएगा और पानी निकल जाएगा। इतनी बड़ी बारिश का ये निज़ाम तो नहीं हो सकता। निज़ाम ये है कि ये पानी, ये बारिश जो होगी, इसके नतीजे में जो पानी खड़ा होगा वो कितनी देर में और कितनी जल्दी निकल सड़कों पर। अच्छा शिराज, मेरा सवाल एक और है, मुज़म्मिल साहब मुझे शिराज से सवाल कि अभी जो मेन शाहराएं हैं, पोर्ट्स इलाके हैं, गलियां सड़कों से, तो गवर्नमेंट इस चीज़ की ज़ाहिर है उनके पास अथॉरिटी है, वो लेती भी है इसकी जिम्मेदारी कि पानी वहाँ से निकाल लिया जाए। जिन लोगों के घर में पानी मौजूद है, गवर्नमेंट तो उन्हें ज़ाहिर है फैसिलिटेट नहीं कर सकती, वो अपनी मदद आपके तहत किस तरह कितना मैक्सिमम पानी निकाल सकते हैं? क्योंकि विजुअल्स हमारे सामने, लोगों के घरों में पानी गया है और जिस तरह मुज़म्मिल ने कहा खराब हो चुकी है, बिल्कुल लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। लोग अपने घरों से अपनी मदद आपके तहत पानी निकाल रहे हैं, और ये वो घर हैं अगेन जो आपके कंपैरेटिवली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, निकाल के कहां फेंकेंगे? गली में पानी खड़ा है, वो तो निकाल नहीं सकते। एग्जैक्टली वही हो रहा है, तो दे डोंट हैव अ सॉल्यूशन, दे आर जस्ट वेटिंग। मैं बताता हूं, मेरे घर में पानी गया, मैं आपको बताता हूं कहां फेंकेंगे। कहां सना, मैं बताता हूं कहां फेंकेंगे। पानी आया, उसके नतीजे में जो हमने सीवरेज के ढक्कन लगाए हुए थे ऊपर रखते हैं, वो हमने उठाए ताकि पानी तेजी से वहां निकले। जो सीवरेज के उसके ऊपर हमने स्टॉपेजेस लगाए होते हैं, वो कवर्स लगाए होते हैं, वो पूरे हटाए ताकि पानी निकले। और जहाँ पे गलियों का गटर ही बंद है, वहाँ घर का गटर कहाँ पे? ये बात आसान सी। अच्छा टाइम खत्म हो गया। मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शिराज आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।